کیا آپ کو کلام مقدس کا وہ حصہ یاد ہے جب یوحنا بپتسمہ دینے والا جیل میں تھا اور اس نے اپنے شاگردوں کو یسوع کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا، کیا آپ ہی وہ آنے والے ہیں یا ہم کسی اور کا انتظار کریں؟ یوحنا جس نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو تیار کرنے کے لیے یسوع المسیح کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے گزاری، اب شک میں مبتلا تھا۔ لیکن کیا واقعی یوحنا یسوع پر شک کر رہا تھا یا یہاں کوئی اور بات ہو رہی تھی؟ کیا اس منظر کے دوران کچھ اور نوعیت کی بات چیت ہو رہی تھی؟ آئیں اس پر گہرے سے نظر ڈالتے ہیں اور آج اس مسٹری پر سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے ضرور اپنے کومنٹس میں خیالات کا اظہار کریں تاکہ بہت سارے لوگوں تک جو ہے یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو کمنٹس میں وہ کر دیں اور گاہے بگاہے جو ہے وہ ہم ان سوالات کے مطابق جو ہے وہ ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں گے تاکہ آپ سچائی سے واقف ہو اور سچائی آپ کو آزاد کرے۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے شروع کرتے ہیں۔ ان کے والدین ضعیف العمر تھے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ لوکا کی انجیل ہے اور اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 5 آیت سے جو ہے جب آپ جو ہے وہ 23 آیت تک پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ زکریا جو ہے وہ ہیکل میں جو ہے وہ خدمت کے لیے گیا اور اس کے سامنے جو ہے وہ جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ تیرے ہاں جو ہے وہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام جو ہے وہ یوحنا رکھنا۔ لیکن اس نے یقین نہیں کیا تو فرشتے نے کہا کہ میں خداوند کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں تو جب تک اس کی پیدائش نہ ہو جائے یا جب تک یہ باتیں نہ واقع ہوں تو جو ہے وہ نہیں بول سکے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپس گیا اور پھر الشبہ جو ہے وہ حاملہ ہوئی اور ان کو جو ہے وہ ایک خدا نے بیٹا بخشا اور اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کا نام جو ہے وہ یوحنا رکھنا۔ اور اس کے بارے میں جو خاص بات تھی کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے معمور ہوگا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ یوحنا کو صرف ایک مشن کے لیے چنا گیا کہ وہ یسوع المسیح کے لیے راہ تیار کرے۔ یہی وہ تھا جس نے یسوع کی خدمت کے آغاز کا اعلان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب ہے اور اس کی جو ہے وہ 29 آیت میں لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، کس نے؟ یوحنا نے، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یوحنا کے بارے میں جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ 2 جگہوں پر جو ہے وہ پروفیسی یا پیش گوئی کی گئی تھی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ اور اس کا 40واں باب اور ملاکی کا 3 باب۔ یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا۔ یہاں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروفیسی میں یا اس پیش گوئی میں 2 جو ہے وہ پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات اور ساتھ میں یہی جو ہے وہ ریولیشن ہے کہ جب یوحنا آئے گا تو وہی جو ہے وہ راہ کو تیار کرے گا اور اسی کے وسیلہ سے جو ہے دنیا پر جو ہے وہ خدا کا جلال یا خدا کا بیٹا جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور پوری دنیا اس کو دیکھے گی اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا نے جو ہے وہ یسوع المسیح کی خدمت کے آغاز کا اعلان کیا اور کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے۔ اب دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں، ملاکی کی کتاب ہے، اس کا 3 باب ہے،
पहली आयत में लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा, वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मलाकी भी जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पेशगोई कर रहा है। आपके लिए ये बड़ी हैरानगी की बात होगी कि ये पुराने अहदनामा की जो है वो आखिरी किताब है, और उसके बाद जो है वो जब हम देखते हैं नए अहदनामा में तो यूहन्ना जो है वो मनादी करता हुआ नजर आता है, और यहीं से जो है वो यीशु मसीह की बाकायदा खिदमत का आगाज होता है। अब जो यूहन्ना के वालिद थे या यूहन्ना का जो बाप था ज़करिया, वो एक लावी काहिन था और उस सहीफों का वो माहिर था, इसलिए यूहन्ना को अपने मिशन के बारे में कोई शक नहीं हो सकता था। लेकिन फिर सवाल ये है, जब वो जेल में था तो उसने यीशु से ये सवाल क्यों किया? क्या वो शक में था? आए देखते हैं कि यीशु ने यूहन्ना के सवाल का जवाब किस तरह दिया। लूका की अंजील है, उसका 7वां बाब है और उसकी 18 आयत से जो है वो आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूहन्ना जो है वो जेल में अपने शागिर्दों को क्या कहता है। कलाम में लिखा है, और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी, बहुत से अंधों को बेनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाके यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। लेकिन यूहन्ना का सवाल ये था, क्या आप मसीह हैं या किसी और का इंतजार हम करें? क्या यीशु ने इस सवाल का बराह रास्त जवाब दिया या उन्होंने बात को घुमा दिया? अब यहाँ पर ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली सदी में रब्बी, जिनमें यीशु भी शामिल था, क्योंकि यीशु जो है वो एक रब्बी था, एक उस्ताद था। खुदा के बेटे होने के साथ साथ जो टीचर या उस्ताद होते थे सो वो तालीम देने का एक तरीका इस्तेमाल करते थे। इस तरीके को रैमिज़ कहा जाता है। ये तालीम देने का एक बहुत ही अच्छा और मुअस्सर तरीका था, जहाँ रब्बी किसी इबारत का हवाला देकर उसका मतलब वाज़िया करते हैं। यीशु ने भी यही किया। रैमिज़ जो है ये एक इब्रानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है इशारा देना या किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। इस तरीके के बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो में जो है वो बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर देखिएगा। और उस वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि यीशु मसीह ने ज़मीन पर क्या लिखा। आप इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर देखिएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक आयत बोलता हूँ, अगर आप इस तरीके को मज़ीद डिटेल में समझना चाहते हैं कि आपको इसकी सही अंडरस्टैंडिंग हो तो मैं एक आयत बोलता हूँ, और अगर आपको ये आयत का पता है ये कहाँ पर लिखी है, कौन सी किताब में या कौन सी आयत है, आप कमेंट्स में उस हवाले को जो है वो लिख सकते हैं। किताब को भी लिख सकते हैं, चैप्टर को भी लिख सकते हैं और आयत को भी लिख सकते हैं। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सकूनत करेगा। ये जो हवाला मैंने अभी आपके सामने रखा है, अगर आपको इसका जवाब आता है तो फ़ौरन जो है वो कमेंट्स में जो है वो जवाब लिख दें। अगर नहीं आता तो ये दरअसल जो है वो 91 ज़बूर में ये हवाला लिखा हुआ है, उसकी पहली आयत में यही तरीका यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो यूहन्ना के सवाल का जवाब दे रहा है। अब यहाँ पर जो ख़ास बात है ये है कि जब आम बंदा इसको पढ़ता है हवाले को तो वो कहता है कि यूहन्ना ये कह रहा है कि आने वाला मसीह तू ही है या नहीं, तो यीशु मसीह उसको कोई और जवाब दे रहे हैं, वो भी घुमा फिरा कर। लेकिन यहाँ पर जो ख़ास बात है, जो मैंने टीचिंग स्टाइल अभी बताया, उसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। जो शख्स सहीफ़ों का माहिर हो, जिसको सभी सहीफ़ों के बारे में पता हो, जैसा कि यूहन्ना
यूहन्ना बपतिस्मा जो देता था तो उसको फौरन पता चल जाता था कि वो किस इबारत की तरफ इशारा कर रहा है। यीशु दरअसल यूहन्ना की तरफ इशारा कर रहे थे, जैसा कि यसाया की किताब उसके 35वें बाब की 3 से जो है वो 6 आयत में लिखा है, कमजोर हाथों को जोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो, उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरन की मानित चौकड़ियां भरेंगे और गूंगों की जबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने यसाया का हवाला जो है वो बयान किया, और बहुत कम लोग जो है वो शायद इसके बारे में जानते होंगे कि जब यीशु मसीह ने ये कहा कि अंधे देखते हैं तो वो सोचते हैं कि उससे पीछे यीशु ने मौजज़े दिखाए थे ना, तो इसलिए यीशु ने ये कहा था। नहीं, यीशु ने दरअसल वो टीचिंग का मेथड इस्तेमाल किया जो मैंने पहले बताया कि किसी चीज की तरफ इशारा करना, क्योंकि यूहन्ना जो था वो शरीयत या सहीफों को समझने वाला बंदा था, वो माहिर था, क्योंकि वो एक काहिन का बेटा था। तो यूहन्ना भी दरअसल एक काहिन ही था, तो वो उस चीज को समझ गया। यहाँ आपके पास ये है कि यीशु ने उसके सवाल का जवाब दिया, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं चल रही है कि आप यसाया से यीशु के इक्तसाबात को देखते हैं, लेकिन करीब से देखें, गहराई से जरा देखें कि यूहन्ना के जवाब में उसके जवाब के दरमियान एक हिस्सा है कि वो उसे छुड़ाएगा या नहीं, कि यीशु ने उसके सवाल का जवाब दिया। लेकिन अब हम इसको जरा गहराई में देखते हैं। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं और जब यीशु मसीह ने जो कहा उसको पढ़ते हैं तो आप जो है वो एक चीज को मिस कर देते हैं। मैं दोबारा से जो है वो इस चीज को पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ लग सके, क्योंकि इस तरह जब मैं बोल रहा हूँ तो मे भी बहुत सारे लोग जो है वो पिछली बातों को भूलते जाएं, क्योंकि बहुत कम लोग जो है वो बाइबल खोल कर जो है वो वीडियोस देखते हैं। तो भी आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा से जो है वो पढ़ देता हूँ। अब आपने गौर के साथ ये हवाला सुनना है। लूका की इंजील उसका 7वां बाब 22 आयत में लिखा है, उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं। लफ्जों को गौर के साथ सुने। मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। एक चीज यीशु ने मिस की है, वो क्या है? मैं दोबारा से यसाया का वही हवाला पढ़ता हूँ। यसाया की किताब 35वें बाब की जो है वो 3 से जो है वो 6 आयत दोबारा से पढ़ते हैं। कमजोर हाथों को जोर और नातवां घुटनों को तवानाई दो, उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरन की मानित चौकड़ियां भरेंगे और गूंगों की जबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। अब आपने यसाया का भी हवाला सुना है और लूका का भी हवाला सुना है, तो इसमें यीशु मसीह ने जो यसाया में लिखा है लूका में वो नहीं कहा। क्या नहीं कहा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर जो है वो उस लाइन को या उस हिस्से को हाईलाइट करें और फिर देखें जो मैं बताता हूँ कि आपने सही नोट किया या नहीं किया। अब वो कौन सी लाइंस थी और वो क्या हवाला था, अगर आपको आता है तो आप जल्दी से जो है वो लाइंस जो है वो लिख दें। आपको भी पता और बहुत सारे लोग जो और भी वीडियोस को देखेंगे उनको भी जो है वो इसको समझने में आसानी हो। जब भी आप वीडियो देखते हैं, पहले देखते हैं या बाद में देखते हैं, इस हवाले को जरूर जो है वो कोड करें या कमेंट्स में लिखें। और कौन सी लाइन छोड़ी है
कमजोर हाथों को जोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। अगर यीशु ने यशायाह की किताब 35वें बाब की 3 से 6 आयत को कोड किया है, तो यीशु जो है वो इन लाइन्स को या इन वर्सेस को क्यों उसने छोड़ दिया, जबकि आधी उसने वर्सेस जो है वो बयान की। दरअसल यीशु मसीह ने जो है उसको वो जवाब दिया जो वो सोच रहा था। यहाँ जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज चल रही है जो आम बंदा नहीं समझ सकता, लेकिन यूहन्ना समझ रहा था और यीशु को भी पता था कि वो क्या बात कर रहा है। यूहन्ना यीशु से पूछने की कोशिश कर रहा था, क्या आप मुझे जेल से छुड़ाने जा रहे हैं? आखिर ये वही होगा जो मसीह करने के लिए आता है, लेकिन इंतजार करे, मैं बाहर आकर पूछ नहीं सकता कि क्या आप मुझे जेल से बाहर निकालने जा रहे हैं। हेरोदेस के पास हर जगह जासूस मौजूद हैं, इसलिए यूहन्ना ये जानते हुए कि रब्बी यीशु के साथ बातचीत कैसे की जाती है, वो बिला वास्ता तौर पर सवाल पूछता है और यीशु बुनियादी तौर पर कहता है कि यूहन्ना तुम जेल में ही एक दिन मरोगे, इंतकाम का वक्त आएगा, लेकिन अब मैं अपने मिशन का सिर्फ एक हिस्सा पूरा कर रहा हूँ। यही वजह कि यीशु ने इस आयत को छोड़ दिया। देखिए, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही स्किप कर देते हैं, लेकिन हर एक आयत, हर एक लफ्ज जो है वो अपने अंदर भेद छुपाए हुए होता है। जैसा कि यीशु मसीह ने जो है वो यशायाह की किताब 35वें बाब की 3 से 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह ने ये लाइंस छोड़ दी। यूहन्ना ने भी उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की कि कोई आम बंदा उसको नहीं समझ सकता था, और यीशु ने भी सेम उसी लैंग्वेज में जो है वो जवाब दिया जो किसी और को पता नहीं थी, वही जान सकता था जो सहीफों से वाकिफ था। और मुझे यकीन है कि यूहन्ना ने जब ये सुना तो वो खुश हुआ होगा, क्योंकि उसे यकीन आ गया था कि वही मसीह है। अब हम देखते हैं कि यीशु जो है वो यूहन्ना को ये यकीन दिला रहे थे कि आने वाला जो मसीह है वो वही है। और एक तरफ जो है वो यूहन्ना थोड़ा सा गमगीन भी था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि यीशु मसीह ने जो है वो कहा है कि वो मसीह तो है, लेकिन वो उसी जेल में जो है वो मरेगा। अब हम देखते हैं कि मैं भी शायद आपके ज़हन में ये सवाल हो, तो इससे तो ये तो नहीं ना पता चल सकता कि पहली सदी में यीशु का यही तरीक़ेकार था और उसके कहने का यही मतलब था। अब इसको थोड़ा सा और हम गहराई में देखते हैं कि यीशु इसके बारे में क्या कहता है। अब हम देखते हैं कि लूका की अंजील है, उसका 7वां बाब है और 24 आयत में लिखा है, जब यूहन्ना के कासिद चले गए तो यीशु यूहन्ना के हक में लोगों से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? मत्ती की अंजील उसके 12वें बाब की 20 आयत में लिखा है, ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा, जब तक कि इंसाफ की फतह ना कराए। यहूदियत में सरकंडे और बालूत के दरख्त की तमसील बहुत मशहूर है, और इस तमसील ने ये खूब सिखाया कि तूफानी हवाएं आएंगी, सरकंडे कभी कभार तेज हवा में झुक जाएंगे, लेकिन बालूत का दरख्त कभी नहीं टूटेगा। वो मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ा होता है और ना झुकता है। दरअसल बालूत का दरख्त इतनी सख्त हवाओं में भी इतना मजबूत होता है कि कभी कभी वो आधे रास्ते में टूट कर गिर जाता है, लेकिन झुकता नहीं। इसका ताल्लुक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से है। एक नजर डालें अगले हवाले में यीशु क्या कहता है। वो कहता है, जैसा मैंने पहले पढ़ा था, मैं फिर पढ़ देता हूँ। लूका की अंजील 7वां बाब 24 आयत में लिखा है, जब यूहन्ना के कासिद चले गए तो यीशु यूहन्ना के हक में लोगों से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? अब यहाँ पर आपको चीजों को समझना चाहिए। यीशु मसीह ने हजूम से क्या कहा? जब यीशु ने ये कहा ना कि क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को, तो यीशु का डायरेक्ट ये कहने का मतलब था कि तुम लोग ये समझते हो कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो शायद हेरोदेस के सामने सच्चाई पर जो है वो समझौता करके अपनी जान बचा लेगा। तो इस तरह नहीं है, बल्कि वो
ایک بالوت کے درخت کی طرح ثابت قدم رہے گا، اور اس طوفان میں وہ اس کی زندگی آدھی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اس سچائی پر سمجھوتا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو یسوع نے یہ جو الفاظ استعمال کیے، دراصل یہ یہودیوں میں ایک تمثیل جو ہے وہ بہت مشہور تھی، اور یہ اس پس منظر میں استعمال کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سادہ سا سوال کیا ظاہر کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یوحنا وہ پیش گوئی والا نبی جس نے یسوع کے لیے رستہ ہموار کیا کہ یسوع واقعی مسیح تھا، اور بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ شاید یوحنا نے جو ہے وہ شک کیا۔ اس نے شک نہیں تھا کیا، بلکہ ہم اس واقعہ کو اس طرح سمجھتے ہی نہیں جس طرح یہ لکھا گیا ہے، اور جس طرح یوحنا یسوع سے بات کر رہا تھا اور یسوع نے جس طرح اسے جواب دیا، اور یوحنا جو ہے وہ اس چیز سے سیٹسفائیڈ ہو گیا، اس لیے اس نے سچائی پر کمپرومائز نہیں کیا اور اس کا جو ہے وہ سر قلم کر دیا گیا۔ یہ سادہ سا واقعہ اتنا سادہ نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل وہ خدا کے کلام کے بھید ہیں جو کہ ہر شخص کو جاننے چاہیے، ہر شخص کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور نیچے اپنے خیالات کا کومنٹس میں ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ لوگ سچائی سے واقف ہو اور سچائی انہیں آزاد کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔